Good morning, dear learners. I, Mr. Muhammad Saad, lecturer of UBKWT D Pharmacy College, Kannada, here presenting you the pharmacy and the healthcare system, the chapter 2 in the pharmaceutical jurisprudence. So, without any further delay, let's get started. First of all, let's see the contents in this chapter. We are going to discuss one by one the definition, objectives, introduction, history, achievements in medical field, pharmacist in India, the role of pharmacist, and finally the references. Let's see the definition of pharmacy. Pharmacy क्या है? तो फार्मेसी इट इज़ बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है ड्रग. फार्मेकोन, फार्मेसी जो है ऑब्टेन किया गया है ग्रीक वर्ड से फार्मेकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग्स. ओके, नाउ इफ़ यू ब्राउज, इफ़ यू गूगल द मीनिंग ऑफ फार्मेसी, ओके, various websites and various dictionaries propose various definitions related to pharmacy. In that, we will going to discuss some effective definitions, okay, which are popular amongst the field of pharmacy. In this, pharmacy is a healthcare profession that links the healthcare science with the chemical science. फार्मेसी हेल्थ प्रोफेशन की ऐसी ब्रांच है जो कि हेल्थ साइंस को केमिकल साइंस से जोड़ती है, एंड इट इज़ चार्ज विद द इंश्योरिंग द सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स. ओके, जो कि इंश्योर करती है सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिसिन्स को. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम. इट इज़ द आर्ट, प्रैक्टिस और प्रोफेशन ऑफ प्रिपेयरिंग, dispensing, preserving and compounding of medical drugs. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम. व्हाट इज़ फार्मेसी? अ प्लेस वेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड. ठीक है, तो जो हमारी मेडिकल शॉप्स होती है उसे भी हम फार्मेसी कह सकते हैं. ए प्लेस वेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड. Let's see the definition of healthcare system. Healthcare delivery system refers to the totality of resources that populations or society distribute in the organization and delivery of a health services. It also includes all personal and public services performed by individuals or institutions for the purpose of maintaining or restoring health. This is the definition proposed by Stanhope in 2001. Or we can say, we can define healthcare system as it implies the organization of peoples. Okay, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है पीपल्स की और इंस्टीट्यूशंस और रिसोर्सेस टू डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज. ठीक है, जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज को डिलीवर करती है. क्यों करती है? टू मीट द हेल्थ नीड्स ऑफ टारगेटेड पॉपुलेशंस. ओके, जो पॉपुलेशन है उसकी नीड को पूरा करने के लिए. ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेल्थ केयर सिस्टम. ओके, नाउ लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम. ओके, मकसद क्या है हेल्थ केयर सिस्टम का? ओके, वो अब हम देखेंगे. फर्स्ट, to improve health status of population and clinical outcomes. This is the first objective. Next objective क्या है? To improve social justice equity in the health status of population. Next objective, to reduce total economic burden of health. And the last one, to raise and pool the resources accessible to deliver healthcare services. The introductory part.
in the introduction of pharmacy and the healthcare system, okay, हम उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना जा रहे हैं. तो फर्स्ट, एवरी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक्स एफर्ट्स टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम फॉर देयर सिटीजन्स. ओके, हर गवर्नमेंट चाहती है कि उनके सिटीजन्स को जो है प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले. ओके, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है, यूएस गवर्नमेंट भी चाहती है, चाइनीज़ गवर्नमेंट भी यही चाहती है. ओके, एवरी गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट का मकसद, बेसिक मकसद यही होता है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके. However, pharmacists play a key role in providing proper health services in a reasonable cost. Okay, for delivering a healthcare system, okay, basically who is responsible? कौन responsible होता है? The doctors and the pharmacist. Okay, doctor and pharmacist play a key role in a healthcare system. Okay, उसी तरह जो है फार्मासिस्ट भी जो है अपना बेसिक की रोल प्ले करता है फॉर प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस. ओके, एट ए रिजनेबल कॉस्ट. इन एन एंशिएंट टाइम, पुराने वक्त में जो थे हमारे इंडिया में पर्टिकुलरली, एन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज प्रीडोमिनेंट. ओके, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है हमारे इंडिया में राज था. ओके, हमारे इंडिया में कायम था. एंड द फार्मेसी प्रोफेशन वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस. ओके, बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड बिफोर द 19th century देयर वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ओके, उस वक्त में फार्मेसी का कोई भी कंसेप्ट हमारे पास नहीं था. ठीक है, लेटर ऑन एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन केम इन एग्जिस्टेंस. ओके, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बाद जो है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एग्जिस्टेंस आया. ओके, कौन लेकर आया? ब्रिटिशर्स. ओके, द ब्रिटिशर्स वेयर ब्रॉट एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया. ओके, जो ब्रिटिशर्स थे वो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर. ओके, सो दिस इज सम इंट्रोडक्टरी पार्ट रिलेटेड टू द फार्मेसी एंड द हेल्थ केयर सिस्टम. लेट्स सी द हिस्ट्री related to this chapter, the pharmacy profession and the healthcare system. In earlier days there was no separate pharmacy profession. Okay, पुराने वक्त में, okay, और before the independence, okay, before the Britishers, there were no any separate pharmacy profession. Okay, उस वक्त में फार्मेसी प्रोफेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था. ओके, और ना ही एग्जिस्टेंस था. The diagnosis and the treatment of various diseases were done by physician. Okay, जो फिजिशियंस होते थे, जो भी हकीम होते थे, वैद्य होते थे, वो सेल्फलेसली जो है बीमारियों को डायग्नोस करते थे और उसका ट्रीटमेंट खुद से ही करते थे. ओके, वे डन बाय फिजिशियंस. समटाइम फिजिशियन यूज्ड टू टेक हेल्प ऑफ देयर नॉन क्वालिफाइड असिस्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन्स इन देयर डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स. ओके, और जो भी फिजिशियंस होते थे वो क्या करते थे, समटाइम्स जो है वो किसी नॉन फार्मासिस्ट और नॉन फिजिशियंस की हेल्प लेते थे. क्यों लेते थे? फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स इन देयर डिस्पेंसरीज. ओके, उसको हम क्या कहते थे? द कंपाउंडर. ओके, जो नॉन प्रोफेशनल फिजिशियंस होते थे उनको क्या कहते थे? द कंपाउंडर्स. ठीक है, इन दिस पिक्चर यू विल सी a man preparing some medicine in a mortal pestle. हम कहते थे कंपाउंडर्स. Meanwhile, allopathic system of medicines was largely accepted by the peoples of India. okay, धीरे धीरे क्या होने लगा, लोगों ने जो है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. ओके, वाई? बिकॉज ड्यू टू मोड ऑफ एक्शन. ओके, इन दिस द धीरे धीरे क्या होने लगा, फार्मास्यूटिकल जो फार्मेसी का जो है डेवलपमेंट
होना शुरू हो गया। द यूज़ ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन का जैसे जैसे इस्तेमाल बढ़ने लगा, साथ ही साथ जो है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजीज़ का भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। डेवलपिंग फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजीज स्टार्टिंग प्रोवाइडिंग sophisticated dosage forms and new drug delivery system। ओके, धीरे धीरे जो है इनिशियल स्टेज में क्या होता था, जो फिजिशियंस होते थे वो जनरली क्या प्रिस्क्राइब करते थे, टैबलेट और कैप्सूल्स। ओके, धीरे धीरे क्या हुआ, सॉफिस्टिकेटेड डोसेज फॉर्म्स का जो है डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, इंजेक्टेबल्स आने लगे। ओके, और धीरे धीरे जो है ओके every sophisticated dosage form were came into existence and new drug delivery system introduced। in this we have seen the capsule। okay, जो इनिशियल स्टेज में होते थे वो जनरली क्या होते थे, टैबलेट्स होते थे। ओके, बाय यूजिंग API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और सम डायलुएंट बाइंडर्स, उसका यूज़ करके जो है फिजिशियंस जो है टैबलेट्स को बनाते थे। ओके, बट ए सोफिस्टिकेटेड डोसेज फॉर्म वेर इंट्रोड्यूस लाइक कैप्सूल्स। ओके, उसका जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। ओके, यहाँ पर हम फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, ए प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मेसी डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट अप टू द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। जो फार्मासिस्ट की जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ थी, ओके, इट वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड अप टू कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। उनका काम जो है सिर्फ कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग तक महदूद ना रहते हुए और भी हायर लेवल पर चला गया। फार्मासिस्ट गॉट एक्टिवली इन्वॉल्व एट मेनी की लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स। और फार्मासिस्ट जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होने लगे इन ए की लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। ओके, अलॉन्ग विद द फिजिशियंस। ओके, फार्मासिस्ट ने भी जो है अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। ओके, फॉर मेकिंग and for preparing of pharmaceuticals। The achievement of India in medical field। okay, अब हम देखेंगे इंडिया ने क्या क्या अचीवमेंट्स किया है मेडिकल फील्ड में। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। इंडिया में जो है वर्ल्ड के जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, उसकी जो है क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है इंडिया के अंदर। India produces the largest number of doctors among the developing world। A large number of doctors leave India shores and are considered the best in the world। ठीक है, अब इंडिया जो है बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स को जो है प्रोड्यूस करता है अमंग ए डेवलपिंग वर्ल्ड। और वो डॉक्टर्स जो है इंडिया को छोड़कर दूसरे कंट्रीज़ में जाके अपने प्रैक्टिस को जो है अंजाम देने लगते हैं, अंजाम देना शुरू कर देते हैं। द इंडिया गेट्स ए मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज रिफ्लेक्टिंग ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल स्किल एंड एक्सपीरियंस। और इंडिया को जो है इसकी वजह से जो है दूसरे मुल्कों से जो है टूरिस्ट मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्टर्स एंड स्कॉलर्स। ओके, जो कि रिफ्लेक्ट करता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल स्किल एंड एक्सपीरियंस। ओके, इंडिया ड्यू टू दिस लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड उसकी वजह से जो है एक हाई स्टैंडर्ड डेवलप हुआ और इंडिया को जो है दूसरे कंट्रीज से जो है टूरिस्ट मिलना शुरू हो गए। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मास्यूटिकल इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया फॉर प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल्स ओके इन द वर्ल्ड। ओके, फर्स्ट नंबर पे USA, सेकंड पे चाइना है और थर्ड नंबर पे जो है इंडिया। सो द इंडिया बिकम्स ए थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। The country's Department of Pharmaceuticals reported that it supplies 20% of the global export of the generic। The achievement of India, in continuation of achievement, majority of citizens have limited access to high quality health care and have poor health indicators। जो मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स है बहुत ही कम एक्सेस है उनका हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर।
only the 2/3 of population lacks access to essential medicines। तो हर 3 में से 2% ऐसे हैं, 2% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि सही से एक्सेस नहीं कर पाती एसेंशियल मेडिसिन्स को। अगर उनके कुछ हार्ट प्रॉब्लम है या तो फिर एनी टाइप ऑफ मेडिकल कंडीशन इज़ देयर, ओके, तो हर 3 में से 2 पॉपुलेशन ऐसी होती है जो कि सही से एक्सेस भी नहीं कर पाती एसेंशियल मेडिसिन्स को, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट्स बढ़ जाते हैं, विच इज़ अ वेरी सैड कंडीशन amongst us। For that, the density of healthcare workers in country is little over 20 per 10,000 population, which is very low as compared to developed countries। Now the pharmacist in India. The pharmacists represent the third largest healthcare professional group in the world। फार्मासिस्ट जो होते हैं वो थर्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल ग्रुप है वर्ल्ड की। एंड इन इंडिया टुडे देयर आर अराउंड 8 लाख फार्मासिस्ट वर्किंग इन वेरियस पोजीशंस अप्लाइंग देयर यूनिक नॉलेज एंड स्किल contributing to health of the nations। Around 8 lakhs or and more pharmacist is working in a various positions। वो अलग अलग सेक्टर्स में फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, ओके। अप्लाई देयर यूनिक नॉलेज एंड स्किल्स फॉर कंट्रीब्यूशन टू द हेल्थ एंड द नेशन ऑफ इंडिया। द फार्मासिस्ट रेशियो। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स ए रेशियो ऑफ 1 फार्मासिस्ट पर 2000 पॉपुलेशन इन ऑर्डर फॉर ऑप्टिमल हेल्थ टू बी डिलीवर्ड। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या रिकमेंड करती है, रेशियो 2000 के ऊपर एक फार्मासिस्ट को जो है रिकमेंड करती है, ओके। द करंट अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन टर्म्स ऑफ फार्मासिस्ट टू पॉपुलेशन इन इंडिया कंपेयर्स फेवरेबली विद दैट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनके हम टक्कर में आ चुके हैं, ओके। द करंट अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट एंड if well utilized, the pharmacist can effectively help in achieving the goal of public health care in India by overcoming the scarcity of health professionals। अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए फार्मेसी प्रोफेशन का, तो फार्मासिस्ट जो होते हैं वो इफ़ेक्टिवली हेल्प कर सकते हैं फॉर अचीविंग द गोल, फॉर अचीविंग द टारगेट ऑफ हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। The pharmacist can effectively contribute to the public health, okay? The role of pharmacist क्या क्या है? फर्स्ट द पेशेंट काउंसलिंग। फार्मासिस्ट जो है, फार्मासिस्ट का जो मेन रोल होता है, ओके, फार्मासिस्ट कैन इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द पब्लिक हेल्थ बाय काउंसलिंग द पेशेंट, ओके। अगर कोई पेशेंट जो हमारी फार्मेसी पे आता है, कोई हमारी मेडिकल पे आता है, तो वी कैन काउंसिल देम, हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। वी कैन ऑर्गेनाइज सम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ओके, सच एज इन दिस पेंडेमिक कंडीशंस ऑफ COVID-19, okay, we can arrange some national healthcare program। The pharmacist is actively involved in the medicine management। फार्मासिस्ट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक्टिवली है मेडिसिन मैनेजमेंट के अंदर, एज सेलिंग ऑफ ड्रग्स ऑन प्रिस्क्रिप्शन, ओके। फार्मासिस्ट जो है ड्रग को सेल करता है ऑन प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। सेलिंग ऑफ लीगली परमिटेड ड्रग्स विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, जो OTC ड्रग्स होते हैं, ओके, फार्मासिस्ट उसको भी सेल करता है, ओके, विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब जो मेडिसिन लिखी होती है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, तो वही फार्मासिस्ट क्या करता है, एज इट इज़ सेम टू सेम मेडिसिन को जो है वो डिस्पेंस करता है। द हेल्थ प्रोमोशन, ओके, हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए, फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट को पता होता है कि हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए।
and pharmacists can also help in de-addiction services. फार्मासिस्ट जो है बाय काउंसलिंग, ओके, बहुत सारे जो एडिक्टेड पर्सनस होते हैं, सम आर एडिक्टेड टू नारकोटिक्स, ड्रग्स, ओके, कोई हीरोइन के ऊपर, हीरोइन से एडिक्शन होता है किसी का, तो बहुत से जो इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत से पॉपुलेशंस होते हैं, दे आर एडिक्टेड टू द कोरेक्स सिरप. ओके, सच एग्जांपल वी कैन कंसिडर एज कोरेक्स सिरप. ओके, कोरेक्स हो गया, टॉसिक्स हो गया. ओके, दे कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ सिरप एज ए एडिक्शन. ओके, वो इसको एज ए एडिक्शन यूज़ करते हैं. तो फार्मासिस्ट कैन डी फार्मासिस्ट के जो है मेन पर्पस होता है कि वो हेल्प करे फॉर द पर्पस ऑफ डी एडिक्शन. ठीक है. प्रोफेशनल डिस्पेंसिंग. ओके, फार्मासिस्ट का जो मेन की रोल है, ओके, इट इज़ एज ए प्रोफेशनल डिस्पेंसिंग and screening services. Okay. Along with all this role, the pharmacists have many other roles such as drug information and professional communication. Okay. Pharmacist is well known person who is expert in medicine. Okay. फार्मासिस्ट को पता होता है कि ड्रग का इफ़ेक्ट क्या है, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है, ओके, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक इफ़ेक्ट क्या है ड्रग्स के, ये, और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल. ओके, इट इज़ अ लिंक बिटवीन डॉक्टर एंड द पेशेंट. ओके, फार्मासिस्ट also know the selection and storage of drugs and pharmaceuticals for hospitals. So the pharmacist is actively involved in the manufacturing process. It is actively involved in the research and development process. Okay, whatever the new drugs are developing in our country or in other country, the only one pharmacist is responsible for the development. Okay, pharmacist is actively involved for the import and export of good quality drugs. Okay, and pharmacist is also responsible for drug monitoring. Okay, drug monitoring or pharmacovigilance, it is a part of pharmacy. Okay, that after the drug to be released in the market, okay, the effect of drug should be monitored. Okay, उसे हम कहते हैं फार्माकोविजिलेंस स्टडी और पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस. ओके, फार्मासिस्ट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर conducting the clinical studies and bioinformatics. Okay, pharmacist is also actively involved in the regulatory affairs. As such, presently the pharmacist is playing a crucial role in healthcare and become an integral part thereof. The pharmacist is actively access the community awareness. The rational use of medicine. The pharmacists are involved in a scientific procurement and distribution of medicine. The pharmacists help in achieving the goals of rational use of medicine. The pharmacists have thorough knowledge about medicines and their use and are in the better position to educate other health professionals about rational use of medicine. तो फार्मासिस्ट को ही पता होता है हाउ टू यूज़ मेडिसिन. ओके, ही विल अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ मेडिसिन. वाई? बिकॉज ही इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग. वाई? बिकॉज ही इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन द research and development process. Why? Because he is actively involved in the preclinical studies. Okay, तो pharmacist को पता होता है. Okay, and intelligently pharmacist can achieve the goals of rational use of medicines. Okay, with the thorough knowledge about medicine and their use and are in the better position to educate the health professional. Okay, it is the responsibility of the pharmacist to educate
अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर्स। ओके, ये फार्मासिस्ट की जो है जिम्मेदारी होती है कि वो एजुकेट करे प्रोफेशनल्स को, सच एज डॉक्टर्स और नॉन प्रोफेशनल सच एज पेशेंट्स, ओके, regarding how to use medicine. By having access to medicinal records, the pharmacists are in position to influence the selection of medicine. Okay, pharmacist influence कर सकता है कि how will you select a proper medicine, okay, for the particular diseases and disorder, the dosage regimen, and the monitoring to monitor patient compliance and the therapeutics. Okay? फार्मासिस्ट जो है मॉनिटर कर सकता है पेशेंट और पेशेंट काउंसलिंग भी कर सकता है इन रिगार्ड्स विद द थेराप्यूटिक्स. फार्मासिस्ट कैन रिकॉग्नाइज एंड रिपोर्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. फार्मासिस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है और रिपोर्ट कर सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, जिसको हम कंसिडर करते हैं इन द फार्माको vigilance. Okay, why? Because pharmacist is an important link between patient and physician. Okay, this is the rational use, and with this I will finish my lecture. The pharmacist have more opportunity to interact closely with the prescriber and patient, and therefore to promote rational prescribing and use of drugs. This is me. For any query or suggestion, kindly comment. Share this video if you found knowledgeable. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें amongst your friends. Thank you.